Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. So before beginning, I wanted to tell you that today is from today onwards we are going to celebrate the Navratris, the 9 days of Navratri. Yet it has been started earlier only, but the last 4-5 days are the important ones. So from the family of Abit Siksha, I would like to wish all of you a very happy Navratri, Durga Puja to you and to all your family. May you study hard, may you prosper in life, may Ma gives you wealth. So with this energy and with this auspicious feeling, let us begin today's daily news capsule. ठीक है, आज की जो important news है वो है an opportunity to recast India's food system. ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स जो है उनको डॉट्स को उन्होंने कनेक्ट किया है. ठीक है, सेकंड सेंटर सेज मेजर्स इन प्लेस टू चेक प्राइस राइज. ये जो टॉपिक है ये एमएसपी और उसी के रिगार्डिंग है, तो ये दोनों टॉपिक जो है कहीं ना कहीं हम इंटरलेट करके भी पढ़ सकते हैं. थर्ड, मेजर रीजनल डिस्पैरिटी इन ओवरकमिंग कैंसर थ्रू सर्वाइवल रेट्स आर अप सेज स्टडी. Fourth news for today is China to work with Egypt to help stabilize West Asia. West Asia के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आते रहता है. Important focus point है ये. And last news for today, Mahsa Amini, whose death led to protest, awarded EU Human Rights Prize. ठीक है, तो ये सारी जो important news है उनको एक एक करके let us cover it. ठीक है, first news for today is एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज फूड सिस्टम. ठीक है, ये जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल तरीके से जो है ये आर्टिकल लिखा गया है. I would highly recommend you to read this article by your own because काफ़ी अच्छे insights जो है इसमें दिया गया है. In this writer has made 3 points. ठीक है, 3 corner points, very important corner points of food security. ठीक है, food security और environment को लेकर he has made this 3 important corner points. ठीक है, the important points are first, like if this is a triangle, then the corner points of this triangle is first is the nutrition. ठीक है, पहला एंगल जो है उन्होंने दिया है दैट इज ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड ही हैज गिवन ऑफ लाइवलीहुड एंड थर्ड ट्राइंगल दैट ही हैज मेड इज द इन्वायरमेंट. ओके, ये जो तीनों जो एंगल्स है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने रीड करने की कोशिश की है. एंड टू अंडरस्टैंड food security in a country we have to take in account this 3 angles. ठीक है, किस तरीके से जो है फूड इज रिलेटेड डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इन्वायरमेंट, food is directly correlated to nutrition and food is directly correlated to livelihood of not just of the consumers but livelihood of the farmers too. ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो है we can see a change in every sphere and every sphere of this triangle. ठीक है, कैसे environment जो है, let us begin with nutrition only. ठीक है, आप जो है फिर बाद में सारे जो है डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे. न्यूट्रिशन ओवर द पीरियड जो है, क्योंकि हमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है वेयर इन सर्टन पॉपुलेशन जो है, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे जो है मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग्स टू चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब में जो है इंडिया आगे है. बट इन अ contrary or in a flip side of the coin, what we see is that people 23% of population is suffering from obesity. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर पोर्ट्रे करता है कि बहुत सारे जो है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना कम रैंकिंग है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड आर सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, people are they are hungry people, they don't have the capability to bring 2 plates of food for a day. ठीक है, in a contrast उनके पास इतने सारे people in India have so many extra income और उनके पास इतना सारा फूड है कि now they are consuming junk food. ठीक है, उनके पास इतना सारा leisure time है, they are not even कंसिडरेड टू मेक देयर ओन फूड एंड ईटिंग जंक फूड. ठीक है, तो इसी की वजह से ओबेसिटी जो है कहीं ना कहीं एक राइज में हमें देखने को मिला है. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, हाउ गुड फूड, कंज्यूमिंग गुड फूड एंड नॉट ईटिंग जंक फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, ये न्यूट्रिशन का एंगल आपको समझ आ गया. लाइवलीहुड इज दैट
इंडियन फार्मर्स दे डोंट अर्न वेरी मच, ठीक है। हमारा जो फार्मर जो है, किसान का तो तबका है, वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे अर्न करता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब किसानों के पास पैसे कम होते हैं, दे सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, और दे वुड सर्च कि लेट अस लीव द लैंड, ठीक है, लैंड को हम छोड़ देते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू दी अर्बन एरियाज, और वहाँ पे जाके कोई ना कोई हम काम ढूंढेंगे, कोई ना कोई हम काम करेंगे। एंड द बेस्ट वे टू फाइंड देयर वर्क अदर देन फार्मिंग इज मनरेगा, ठीक है। मनरेगा के थ्रू वो जो है वो काम करने के लिए लेबरर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है फार्मर्स का जितना भी कम होगा पॉपुलेशन, तो हमें फूड कौन पहुंचाएगा, प्लेट पे हमें फूड कौन पहुंचाएगा? किसान जो है, अगर वो काम छोड़ के दे आर गोइंग फॉर मनरेगा और अदर मैनुअल वर्कर्स तो फिर हमें प्लेट में फूड कौन पहुंचाएगा? दैट इज द अंडरलाइंग क्वेश्चन हियर, ठीक है। लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और लाइवलीहुड पे अगर हम इम्पैक्ट करता है तो इन्वायरमेंट का रोल यहाँ पे आ जाता है। हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इन्वायरमेंट, अगर जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा एडवर्सिटीज आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा एडवर्सिटीज आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी फ्लडिंग्स की वजह से आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी लोकस्ट अटैक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो इजिप्ट से जो लोकस्ट जो है, टिड्डियों का जो अटैक हुआ था, दैट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। बहुत सारे जो डिजीजेज हो जाते हैं, उनके कैटल्स को जो डिजीजेज हो जाते हैं, बफेलोज को जो डिजीजेज हो जाते हैं, उसका क्या, ठीक है। तो ये तीनों एंगल जो है, अगर आप एक दूसरे से डॉट्स कनेक्ट कर पाए तो ये काफ़ी बड़ा एक ब्रॉड पिक्चर जो है हमें शो करता है, काफ़ी बहुत ही ब्रॉड पिक्चर है, एंड वी नीड टू वर्क इट इन एवरी फ्रंट, ठीक है। और अगर हम क्लाइमेट के फ्रंट पे काम करेंगे, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम होगा, एंड ऑब्वियसली लाइवलीहुड के ऊपर भी काम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये जो साइकिल है, इट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है। तो राइटर हैज ऑल्सो गिवन अस सम अप्रोचेस, ठीक है, कुछ तरीके दिए हैं कि हाउ टू हाउ टू कर्व द इश्यूज, ठीक है। ये इश्यूज को किस तरीके से जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो है, हमें कंज्यूमर का जो पैटर्न है, कंज्यूमर का कंज्यूमिंग पैटर्न है, उसको समझना होगा और उसको चेंज करना होगा, ठीक है। आपने अगर देखा होगा, अक्सर जो है आजकल हम जो इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो जिस तरीके से खाना खाते हैं, हम भी उसी के तरीके से जो है, हम कहीं ना कहीं हमारा कंजम्पशन पैटर्न भी उसी तरीके से चेंज होता गया। सो वी कुड चैनलाइज दैट एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी को हम उस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो है ओट्स या फिर कीनुआ खाने का जो है ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, टोफू खाने का जो है ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा, प्रोटीन कंज्यूम करने का, उसी तरीके से जो है हम अपने जो है प्यारे मिलेट्स को जो है हम कंज्यूम कराने की बात करा सकते हैं वाया दीज इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। मिलेट्स जो है, बाजरा, रागी, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप देखें, वो फूड के लिए भी अच्छा है, वो न्यूट्रिशियस भी है, वो फ्रेंड ऑफ फार्मर भी है, ठीक है, फार्मर को भी हेल्प करता है, और वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पानी कम कंज्यूम करता है, वेरी स्टर्डी प्लांट्स है ना, तो ये ऐसे मिलेट्स को हम कंज्यूम करवा सकते हैं, ठीक है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है हम जो है श्री अन्न इज नथिंग बट मिलेट्स, ठीक है। श्री अन्न बोला गया है मिलेट्स को, ठीक है। तो हम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, पहला जो हम कंज्यूमर पैटर्न, सेकंड जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है फीड करवा सकते हैं, बच्चों को मिलेट्स कंज्यूम करा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को मिलेट्स कंज्यूम करवा सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ठीक है, जिसको भी राशन जा रहा है उनके साथ जो है हम मिलेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड में हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फार्मर्स को टू प्रोड्यूस मिलेट्स, ठीक है, अपने जो है खेत में वो मिलेट्स को प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो जो है फर्टिलाइजर उनको कम चाहिए होता है, पानी का भी अवेलेबिलिटी कम चाहिए होता है। तो हम जो है इस तरीके से जो है एमएसपी में, हम कल डिस्कस कर रहे थे, एमएसपी में भी हम जो है मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पे हम जो है काफी ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिलेट्स का यूज कर सकते हैं या फिर कोई अदर प्रोड्यूस, ठीक है। हम जो है क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा कि शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, और आपका जो राइस हो गया, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा पानी खींचते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वी कुड शिफ्ट आवर क्रॉपिंग पैटर्न लाइक दैट ओनली, ठीक है। हम जो है जितना इंसेंटिवाइज करेंगे मिलेट्स के जैसे प्रोडक्ट्स में, जितना हम एमएसपी लाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि उनको उसमें इंसेंटिव दिखेगा तो फार्मर्स भी फिर प्रोड्यूस करने लगेंगे उस तरीके से, सॉइल का हेल्थ भी मेंटेन होगा, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है तीनों जो प्रॉब्लम्स है, 3 साइडेड जो इश्यूज है, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ऑफ न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड ऑफ इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप जो इससे काफी सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको काफी सारे पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, इस पे आने का क्वेश्चन का भी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है।
Okay, so we will move on to the next news. The next news is center says measures in place to check price rise. ठीक है, प्राइस राइज, ठीक है, हमने जो है मालूम है हमें कि अभी जो है इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आया है. इट इज़ अराउंड 5.6. ठीक है, फूड इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हम लोगों ने लेकर आया है. ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन को जो है अभी, क्योंकि पिछले साल ये हमारे मॉनसून से पहले जो राबी की कटाई हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी. ठीक है, राबी की जो कटाई हुई थी जो है खरीफ, पिछले साल का खरीफ सीजन और रबी सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. बट दिस ईयर ये जो 2023 का जो है खरीफ सीजन में प्रोडक्शन जो है हमें अभी पता चलेगा जब जो है खरीफ फसल की कटाई होगी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो है प्रोडक्शन जो है डिमांड और सप्लाई में कहीं ना कहीं एक मिसमैच या फिर इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई. ठीक है, बारिश जो है ऑन द मार्क नहीं हुई है. ठीक है, मॉनसून का जो है इस साल थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिला. आपको याद है अगस्त में काफ़ी कम बारिश हुई थी, है ना, जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी. तो बहुत सारी स्टेट्स में ये अफेक्ट करता है. ठीक है, नाउ यू कनेक्टेड टू द अर्लियर टॉपिक जो हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है. ठीक है, हम जो है पिछला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एंड यू कैन लिंक इट विद दिस टॉपिक ऑल्सो. वाई वी आर चेकिंग कीपिंग द प्राइस, मतलब चेक कर रहे हैं हम जो है, क्यों हम जो है इंटरफेयर कर रहे हैं प्राइस राइज के लिए, क्योंकि ये जो क्लाइमेट एडवर्सिटीज़ की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो फसल है उसमें जितना जो आउटपुट है वो शायद कम हो सकता है. ठीक है, इसी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है दे आर ट्राइंग टू कीप दी मेंटेनिंग दी प्राइस बैलेंस. ठीक है, प्राइस बैलेंस मेंटेन करने की वो कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें जो है क्योंकि बारिश कम हुई तो देयर कुड बी चांसेस. ठीक है, देयर कुड बी चांसेस कि जो है प्रोडक्शन जो है उस लेवल पे ना हुआ हो. ठीक है, हमें आउटपुट जो है उस लेवल पे ना मिला हो. साथ ही जो है पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन भी है काफ़ी ज़्यादा है. हमारा डाइट कंज्यूम जो हम करते हैं दैट इज़ अ वेरी स्टेपल डाइट. ठीक है, हमें जो है राइस या फिर व्हीट या फिर जो है लेंटिल्स, पल्सेस जो है, तेल जो है, हमें वो हमारा स्टेपल डाइट है. ठीक है, तो हमें जो कहीं ना कहीं ये इशू हमें देखने को मिल सकता है. और क्योंकि फेस्टिविटीज़ भी आ रही है, पूजा सीजन्स भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें प्राइस में जो है मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो श्री संजीव चोपड़ा, जो फूड सिक्योरिटी के जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला इफ़ नीडेड हम जो है एक्सपोर्ट में जो है, एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं हम रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं. आपको मालूम है शुगर, चीनी, शुगर में, व्हीट में और राइस में जो है हम लोगों ने पार बॉइल्ड राइस. ठीक है, पार बॉइल्ड राइस हो गया, आपका बासमती हो गया, बहुत तरीके का हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट पे जो है वो हम लोगों ने स्टॉप करके रखा है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है लिमिटेड जो है हम लोग एक्सपोर्ट अब करते हैं. ठीक है, तो अगर इफ़ नीडेड वी विल ऑल्सो फर्दर मोर रिस्ट्रिक्ट दी एक्सपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर. ठीक है, जैसे राइस, लेंटिल्स वगैरह का जो है हम प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंड हो जाता है. और आपको इससे जो है इस टॉपिक में जो है ये आपको समझ आ गया कि वो जो है एक्सपोर्ट जो है उसको कम करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे इफ नीडेड. ठीक है, राइट नाउ द कंडीशन इज स्टेबल. ठीक है, अभी जो हमारे पास सरप्लस में है फूड, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि जो है कमी देखने को मिलती है इन सम रीजन, तब वो जो है एक्सपोर्ट को थोड़ा घटाएंगे. ठीक है, बट इट वुड कम विथ इट्स ओन रेपरकशंस. ठीक है, हम जो कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट है उनको प्रॉब्लम्स आएगी. ठीक है, हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बैलेंस रेशियो है वो मेंटेन करने में थोड़ा इशू आएगा, बट दैट इज ऑफ डिफरेंट स्टैंड्स. ठीक है, वो दूसरा एक टॉपिक हो जाता है. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ओपन मार्केट सेल्स स्कीम. ठीक है, OMSS, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में क्या होता है, जो FCI है, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, वो ई ऑक्शन कराती है. ठीक है, ई ऑक्शन क्या होता है, जैसे मार्केट में आपको मालूम है MSP में FCI जो है प्रोक्योर कर लेती है ना, और मार्केट में अगर प्रोडक्ट्स कम है, मतलब जो खाने का जो है व्हीट या फिर राइस जो है कम है, तो क्या करती है FCI क्या करती है, द प्रोक्योर्ड फूड. ठीक है, क्योंकि FCI हमेशा सरप्लस में रहती है, फूड सरप्लस में रहती है. ठीक है, तो कभी कभी जो अगर मार्केट में जो है राइस की कमी है, तो नाउ व्हाट FCI डज इज वो जो है ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के थ्रू वो ई ऑक्शन करती है. ठीक है, और मार्केट जो है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, लेट सपोज मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वो मैकडोनल्ड्स आएगी, ई ऑक्शन में भाग लेगी और वो जो है FCI से डायरेक्टली वो परचेज कर लेंगी. ठीक है, मैदा आटा हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं वो जो है FCI जो है मैकडोनल्ड्स से को बेच देगी. ठीक है, वो ई ऑक्शन के थ्रू वो जो है खरीद और बेची जो है वो चलता है. ठीक है, ठीक है, तो ये किस में होता है, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड. ठीक है, NCDEX में जो है ये प्लेटफॉर्म में होता है ई ऑक्शन.
रिमेंबर इट इज एन ई ऑक्शन, ठीक है। तो आपको ये जो है जो डिमांड और सप्लाई मिसमैच अगर कभी हो जाता है तो उसको जो है स्टेबल करने के लिए ये जो है ऑक्शन किया जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक। OMSS जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और ये कभी मेंस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जो है ऐसा डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। The next news is major regional disparity in overcoming cancer through those survival rates are up, says study, ठीक है। तो ये इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये स्टडी किया है बाय लैंसेट द रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जो बेस्ड एक वो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये एक दे हैव स्टडीड, ठीक है, इंडिया में जो है उन्होंने कैंसर के ऊपर स्टडी किया है, ठीक है, कैंसर के ऊपर जो है उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है। उन्होंने ये स्टडी में ये पाया है, लेट अस सी, उन्होंने ये स्टडी में ये पाया है कि बहुत सारे जो है रीजनल डिस्पैरिटीज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। स्टडी पब्लिश्ड इन दी लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया बेस्ड साउथ एशिया, ठीक है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये जो है डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि इंडिया में जो है रीजनल डिस्पैरिटी जो है ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर में जो है हमें यहाँ पे एक रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। भले सर्वाइवल रेट्स जो है वो काफ़ी हाई है इंडिया में, बट डिस्पैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्क है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें आपका जो है तिरुवनंतपुरम अहमदाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जिनको कैंसर होता है उनका सर्वाइवल रेट जो है सबसे ज़्यादा है इन अहमदाबाद में जो है 61% लोग जो है 0.5% लोग जो है वो सर्वाइव करते हैं, और तिरुवनंतपुरम में भी काफ़ी अच्छा है, कोल्लम में भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर यहाँ पे हम त्रिपुरा को देखें तो वहाँ पे सर्वाइवल रेट इज़ बहुत कम, ठीक है, 31.6% जो है यहाँ पे सर्वाइवल रेट है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पे क्या है डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहती है, ठीक है। एक इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ जो दूसरे स्टेट्स है इन कंपेयरिंग टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विस जो है काफ़ी ईजिली मिल जाता है, ठीक है। जिस तरीके से बोलते हैं कैंसर को फर्स्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, बट अगर हमें जो है उस तरीके की फैसिलिटी ही ना मिले तो हम किस तरीके से क्योर करेंगे, ठीक है, हम हाउ वुड वी डिटेक्ट, वो जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे जो है दूसरे स्टेट में हमें ज़्यादा दिखता है, और डिस्टेंस जो है क्लिनिकल केयर फैसिलिटीज़ में जो डिस्टेंस है, मतलब एक इंसान लेट्स सपोज इफ समबडी हु इज़ लिविंग इन त्रिपुरा इन द हिली रीजन ऑफ त्रिपुरा, उनको अगर कैंसर हो जाता है तो उनको अल्टीमेटली जो है कोई बड़े शहर में आके करवाना होता है चेकअप वगैरह, प्रोबेबल ऑप्शन इज इन गुवाहाटी इन आसाम, ठीक है। तो वहाँ पे जो है क्लिनिकल केयर फैसिलिटीज जो है वो कम है, इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट जो है ट्रैवलिंग का भी बहुत, दिस इज नथिंग बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, this is nothing but out of pocket expenditure. Travel cost is out of pocket expenditure. comorbidities, poverty, ठीक है, सर्वाइवल रेट जो है इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है, इन रिगार्ड्स टू सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैं आपको ये इसीलिए लाई थी क्योंकि एक डिस्पैरिटी एक देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, डिस्पैरिटी इन कंटेक्स्ट टू सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज चाइना टू वर्क विथ इजिप्ट टू हेल्प स्टेबिलाइज वेस्ट एशिया, ठीक है। West Asia is always in the news and it is also favorite topic of all the civil service commissions, ठीक है, जितने भी आप स्टेट सर्विस कमीशंस हो गए, UPSC हो गए, उनका फेवरेट अरीना है, ठीक है, वेस्ट एशिया के ऊपर आप एवरी ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एंड यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस और इंस्टेबिलिटी जो है हमें देखने को मिलती रहती है ऑलवेज, बिकॉज देर आर मेनी पावर देर इज़ अ रीजनल इनबैलेंस, ठीक है, इन दी वेस्ट एशियन जो वेस्ट एशिया एज अ होल, वहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, ठीक है। इसी की वजह से आपको यहाँ पे ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, ठीक है, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, आपको ईरान वर्सेस टर्की दिखता है, आपको ईरान वर्सेस इजराइल आपको दिख जाएगा, ठीक है, और इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड,
इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे जो है इनका जो है डिस्पैरिटीज, और सीरिया में जो है आईसिस का जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है काफ़ी लार्ज नंबर पे हमको देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो एरिया है यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी जो है बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसीलिए एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उन्होंने चाइनीज़ अब क्या करना चाहते हैं, नाउ दे वांट टू बी द किंग इन वेस्ट एशिया, ठीक है। पहले क्या था, पीस मेकर या फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन था या इस एरिया में, वो था यूएस, ठीक है। बट नाउ व्हेन यूएस हैज शिफ्टेड इज विजन फ्रॉम वेस्ट एशिया टू एशिया पैसिफिक और द इंडो पैसिफिक रीजन, अब वो क्या कहते हैं, चाइनीज नाउ दे वांट टू इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एशिया, ठीक है। इसीलिए चाइनीज जो है दे वांट टू वर्क विथ इजिप्ट टू मेंटेन अ बैलेंस इन वेस्ट एशिया, ठीक है। इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं आपके लिए ये मैप लेकर आई हूँ। दिस इज द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया और द मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट का जो है ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक द रेड सी, गल्फ ऑफ एडन या बाबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। ये सब जो है गल्फ ऑफ ओमान, ये सारे वाटर बॉडीज भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे न्यूज़ में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है जोग्राफिकल लोकेशन या यहाँ पे कौन कौन सी जो बॉडीज है, लाइक मिलिटेंट बॉडीज लाइक हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, ये सारे जो हाउथीस हो गए, ये सारे जो बॉडीज है उनको भी आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बॉडीज जो है कहाँ पे जो है एक्टिव है, कौन कौन सी बॉडीज जो है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज से जो है अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन एज अ होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी अगर आप देखें, यहाँ पे कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। ये जो एरियाज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जो है क्वेश्चन जो है वो भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जब आप ये PDF डाउनलोड करें, एक बार जो है एटलस में ये एरिया को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आएगा, ठीक है। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइक यू कैन सी द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन ईरान। ईरान में जो है आप चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो है जब से चाइना ने जो इन्फ्लुएंस किया है ईरान में, हमारे जो यहाँ पे ईरान में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो प्रोग्राम था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आने लगी। और फिर जो हमारा चाबहार पोर्ट है वहाँ पे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही बात है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जहाँ पे होगा इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर USA, ठीक है। तो यही टॉपिक था। ज्योग्राफिकली टॉकिंग दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब पढ़ेंगे तब मेक श्योर करिएगा कि एटलास में आप ये जो टॉपिक, ये एरिया है उसको अच्छे से कवर कर ले, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज महसा अमीनी हुज डेथ लेड टू प्रोटेस्ट अवॉर्डेड EU ह्यूमन राइट्स प्राइज, ठीक है। महसा अमीनी को जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर नॉट जस्ट फॉर नॉट वेयरिंग दी हेड स्कार्फ, ठीक है। उन्होंने जो है ईरान में ये रूल बनाया फॉर वुमेन हैव टू वेयर हेड स्कार्फ, ठीक है। हेड स्कार्फ जो है उनको पहनना ही होगा, दिस इज़ द रूल, ठीक है। ये रूल्स उन्होंने बनाए थे। तो महसा अमीनी जी ने जो है हेड स्कार्फ नहीं पहना था, इसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस के कस्टडी में ही उनका डेथ हो गया था। सो दिस हैज स्पर्ड अ वेरी मच लार्ज प्रोटेस्ट जो है उसको स्पर किया है। काफ़ी बड़ा एक प्रोटेस्ट जो है ईरान में चला एंड ईरान की वजह से जो है बाकी एरियाज जो है बाकी लिबरल कंट्रीज़ में भी जो है USA हो गया, इनफैक्ट इन इंडिया ऑल्सो वीमेन हैज़ सपोर्टेड एंड रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट्स एंड देयर पॉलिसीज टुवर्ड्स वीमेन, ठीक है। वहाँ पे जो है वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है एंड दे आर ट्रीटेड नथिंग बट जो है जूती की धूल के समान उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऑल द लिबरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, also the multilateral forums like UN has also condemned the work of Iran, ठीक है। ईरान का जो एक्शंस है उसको कंडेम्ड किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है महसा अमीनी जी को है पोस्टमसली जो है उनको EU का जो अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का जो अवार्ड है EU का जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड बट जो अवार्ड जो सेरेमनी है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13th December, ठीक है। अंडरस्टूड। सो यही टॉपिक है। उनको जो है EU का जो है अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। द अवार्ड इज EU ह्यूमन राइट्स प्राइज। प्लीज रिमेंबर EU ह्यूमन राइट्स प्राइज, ठीक है, ठीक है। और ये जो है सारी लिबरल कंट्रीज है लाइक USA हो गया
लाइक यूके हो गया, EU हो गए, जितने 27 कंट्रीज है EU है, दे ऑल हैव टुगेदर दे हैव कम एंड कंडेम्ड ईरान्स स्टांस, ठीक है, ईरान का जो एक्शन है उनको कंडेम किया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेट एंड रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा ने लाया है पेपर 1 का एक एक्सटेंसिव कोर्स, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं पेपर 2 में तो क्लियर कर जाते हैं, बट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पेपर 1 में कहीं ना कहीं उनका जो है थोड़ा मुश्किल आ जाता है उनको, ठीक है। तो हमने एक्सटेंसिव कोर्स लाया है, दिसंबर तक could run, and अगर जो है if extra classes needed that will also be provided after the completion of courses, ठीक है। इसमें जो हम पेडागोजी, असम जीके, इंग्लिश एंड GS एंड करंट अफेयर्स जो है इसको एक्सटेंसिवली कवर कराएंगे, एंड इनफैक्ट वी विल ऑल्सो गिव वीकली मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन भी होता है। द क्लास इज जस्ट बिगिन, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी क्लासेस, ठीक है। आप जो है कॉल करिए एंड वी विल गिव यू एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड PD100 to avail one more extra discount, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section, and we will meet next time. Till then, take care and thank you.